Okay, so good morning, class. So this is your English lecture, and today we are going to continue with the topic that we were discussing yesterday. So yesterday we started with the elements of communication, and then we talked about the concept of one-way communication and two-way communication, right? So anybody from the class who can tell me what is one-way, what is the difference between one-way communication and two-way communication? मैम वन वे कम्युनिकेशन होती है जैसे कोई एक ही बंदा बोल रहा है और दूसरा बोल ही नहीं रहा। टू वे होती है जब दोनों बोल रहे हैं। You can say that you can give define it that way, but I feel excuse me. So better way of describing one way communication and two way communication is that when you say that in one way communication there is no feedback. On the other hand, when we talk about two way communication, there is a feedback from the receiver, right? So this is a better way of explaining what is what is one way communication and two way communication, right? So basically in one way communication the message goes from sender and then it goes to receiver, but in two way communication the message it goes from sender to receiver and then from receiver to sender. So it's a complete process. So we are going to continue with the same topic today, and we are going to talk about the process of communication. All right, any doubts in the lecture that we have done yesterday? Elements में किसी को कोई doubt तो नहीं है? नो मैम। I hope you have understood all the elements. Who is the sender? Who is the receiver? What is the channel? Okay. So is this slide visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So we have already talked about the elements. That is the sender. The sender is the person who starts the process of communication. Sender is the person who sends the message. Message is, any idea in the physical form. It can be any sort of information, your thoughts, any sort of concept, कुछ भी हो सकता है. And then encoding is, putting your thoughts and ideas into words. The process of, converting your thoughts and ideas into words is known as encoding. Then we have channel. Channel or a medium is some sort of, it's a way, a method through which the communication travels. The message is transmitted. Then we have receiver. Receiver is the person who receives the message. Then we have decoding. So receiver uh, is the person who decodes the message. And decoding में क्या होता है? You attach a meaning to the message. You try to understand the message. You try to decode the message. And lastly, we have feedback. Feedback is a kind of response or a reply from receiver to the sender. And feedback is something which makes the process of communication complete. And then we talked about one-way communication and two-way communication. So in one-way communication, there is no feedback. On the other hand, a feedback is sent in two-way communication. So one-way communication is very speedy. Two-way communication is time-consuming. मैम हाँ जी. मैम ये डिकोडिंग मतलब कैसे मैम? मैम ये नहीं समझ आया। Okay, so decoding is बच्चे, so when you receive a message, for example, जब मैं आपको कोई भी message भेज रही हूँ, messages in spoken form, verbally आपको explain कर रही हूँ मैं सब कुछ, so आप ये सब कुछ receive कर रहे हो मैं जो भी आपको समझा रही हूँ, and when you try to understand it, जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, सारे लेक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या है? ये प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग है. ओके मैम. ठीक है, your understanding when the receiver receives the message and tries to understand the message and try to attach a meaning to it, that is the process of decoding. Is that clear now? अब समझ आ गया बच्चे? यस मैम. यस मैम. ठीक है. So one way communication and two way communication में थर्ड डिफरेंस है कि इंफॉर्मेशन जो शेयर करी जाती है वो विदाउट रिस्पॉन्स होती है. ऑन द अदर हैंड अगर टू वे कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बैक एंड फोर्थ हम शेयर करते हैं. ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है विच कीप्स ऑन गोइंग.
Next is it does not ensure accurate understanding of the message. जो one way communication है उसमें exactly आप understand नहीं कर सकते हो, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि रिसीवर तक मैसेज पहुंचा है कि नहीं, एंड मोर ओवर अगर फीडबैक नहीं है, देर इज़ नो रिप्लाई, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर साइड, सो ऑब्वियसली देर इज़ गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। चांसेस, देर आर हाई चांसेस कि कोई ना कोई वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या मिस इंटरप्रटेशन हो जाएगी मैसेज की। मैसेज का मीनिंग कुछ और था लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी किसी डिफरेंट तरीके से हो जाएगी। बट इफ़ यू टॉक अबाउट टू वे कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे जो है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज ये इंश्योर करता है, बिकॉज देर इज दिस फीडबैक्स, यू कैन ऑलवेज आस्क योर यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स, और जो भी आपको कन्फ्यूजन है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप साथ के साथ उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। Then it is not complete communication system, obviously, because the communication is flowing only in one direction, and that is from sender to receiver. So that is why this is not a complete communication system. But if we look at the two-way communication, that is a complete communication system, because it is a two-way process. So the message starts from sender, it goes to receiver, and then the receiver formulates the reply and then gives it back to the sender. सो ये एक कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम है। कंप्लीट कब होता है बच्चे? जब फीडबैक आ जाती है, ठीक है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंडर। सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम। Lastly, it does not create better understanding within the sender and receiver, obviously, because उनमें contact ही नहीं है कोई, तो कोई understanding नहीं होगी उन दोनों के बीच में। बहुत सारी miscommunication, बहुत सारे confusions होंगे, और that may result into conflicts and contradictions. So on the other hand, अगर हम two way communication की बात करें, तो it creates better understanding within the sender and the receiver, because अगर कोई भी doubts हैं, कोई भी confusion है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो वो साथ के साथ क्लैरिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क मी साइड बाय साइड, राइट? सो ये क्या है? दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। इफ आई टेल यू दैट यू कैन नॉट आस्क डाउट्स, and I am not going to take your doubts, that and I do not even ask you कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, so that is when it becomes one way communication. I am just delivering the lecture and I am not asking कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, I am not taking your feedback. So then in that situation, in that case, it becomes a one way communication. So when I ask you कि अगर कोई questions है, कोई queries है, you can ask me, then and when you ask those questions and queries and doubts, तो तब क्या हो जाता है? तब ये process complete हो जाती है, and then it becomes a two way communication. ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन या आपके मन में कोई डाउट्स नहीं रहते, और मेरे मन में भी सेंडर के जो सेंडर है उसको भी कोई डाउट्स नहीं रहते कि ओके रिसीवर को मैसेज समझ आया है या नहीं आया है। सो व्हेन यू गिव अ फीडबैक, व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक टू मी, तब जो सेंडर है उसके भी डाउट्स जो हैं या कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लैरिफाई हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू got the difference between one way communication and two way communication? Do you understand what it is? Yes, ma'am. Okay. Shall we move to the next slide now? Yes, ma'am. Okay. So ये diagrams है बच्चे which shows the difference between one way communication and two way communication. For example, अगर आप ये वाला left side वाला diagram if you look at it, so first one is which represents one way communication. So A sends a message to B, open the door, for example. It says open the door, right? So this is one way communication and it is complete. So now अगर A को कैसे पता चलेगा कि B ने जो है वो डोर को खोला है या नहीं खोला है? Unless until B जो है वो reply ना करे, okay, the door is opened, so A would never come to know if B never replies, right? So that is the importance of feedback, that it completes the process of communication and it leaves no doubts. Got it? So here also it shows that how feedback is important and it completes the process of communication. The sender sends a message through a channel to the receiver, and then the receiver gives back feedback, and feedback improves the process of communication.
All right. Okay. So initially we were talking about elements of communication, right? And now we are going to talk about the process of communication. First, I want you to understand the difference. When see जब हम elements की बात करेंगे तो elements में बच्चे हम सिर्फ ये बताएंगे कि communication की process में क्या क्या चीज़ें होती हैं, right? For example, sender, encoding, message, channel, decoding, receiver, and then feedback. राइट सो एलिमेंट्स की जब बात करेंगे तो हमने ये नहीं बताना कि कैसे कैसे सारी चीज़ हो रही है. वी आर जस्ट गोइंग टू टेल कि किन किन चीज़ों के साथ वो प्रोसेस जो है वो बनती है, राइट. और जब हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. इज दैट ओके? समझ आया? So let's just look at what is written over here. So this says the process of communication refers to the transmission or passage of information. So क्या हो रहा है कि कोई भी information जो है वो pass कर रही है, right? And information or message from the sender through a selected channel. राइट सो जो मैसेज है वो कैसे पास ऑन हो रहा है? इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ अ चैनल टू द रिसीवर, राइट. और एक चीज़ की एडिशन है अब यहाँ पे. व्हाट इज दैट? इट सेज दैट बाय ओवरकमिंग द बैरियर्स दैट अफेक्ट इट्स स्पेस, राइट. सो वी हैवंट टॉक्ड अबाउट बैरियर्स येट, बट जब हम प्रोसेस की बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू मेंशन बैरियर्स ओवर है कि जब भी कोई भी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होती है तो हमेशा उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ना कोई बैरियर जो है वो उसको प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. कोई भी हिंड्रेंस जो आती है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज बैरियर्स, right. Next is it says the process of communication is a cyclic one. ये मैं आपको already बता चुकी हूँ because the message it starts from the sender, it goes to receiver and then receiver उसको वापस भेजता है sender को. So cyclic means it's a sort of a circular process, right. So the process of communication is a cyclic one as it begins with the sender and ends with the sender in the form of feedback. So start भी sender से हो रही है और end भी कैसे होगी? sender पे ही होगी, right. Okay, so अब process of communication में हमने एक चीज़ की addition करी है, that is what? That is barriers. So if you look at this diagram over here, तो यहाँ पे भी barriers का mention करा गया है, राइट. चैनल के नीचे वी हैव मेंशन बैरियर्स. सो ओके, अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे सो इट सेज कि सेंडर जो है, सेंडर एक मैसेज को इनकोड करके एक चैनल के थ्रू भेजता है रिसीवर तक और रिसीवर उसको डिकोड करता है, राइट. डिकोड करके उसको रिसीव करता है और फिर जो रिसीवर है हमारा वो भी एक मैसेज को फॉर्मुलेट करेगा. अब फीडबैक जब देनी है रिसीवर ने, देखो जो सेंडर सेंड कर रहा है उसे हम मैसेज का नाम देते हैं, जो रिसीवर सेंड करेगा उसे हम फीडबैक का नाम देते हैं, राइट. सो यहाँ पे एक तरह से अब रोल रिवर्सल हो जाएगा. जो पहले काम सेंडर ने करा अब वो सेम काम रिसीवर करेगा. सो रिसीवर इज गोइंग टू फॉर्मुलेट अ मैसेज, वो एक मैसेज को फॉर्म करेगा और उसको हमने क्या नाम दिया है, उसे हम फीडबैक बोलते हैं, ठीक है. सो फीडबैक को वो इनकोड करेगा और वो एक चैनल के थ्रू उसको सेंड करेगा सेंडर तक और वो उसको जो सेंडर है उसे डिकोड करके उसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेगा. एंड देन अगेन सेंडर एक दोबारा मैसेज भेजेगा इनकोड करके चैनल के थ्रू और रिसीवर उसको रिसीव करेगा एंड देन रिसीवर उसको फीडबैक सेंड करेगा सेंडर को वापस. अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि बहुत बार अलग अलग चैनल्स में अलग अलग तरीके के बैरियर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, राइट. अगर हम जो हम ऑलरेडी चैनल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑनलाइन टीचिंग, राइट. अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी बहुत बार बैरियर्स होते हैं. कभी कभी आपको ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको आवाज़ क्लियरली सुनाई नहीं देती, राइट. कभी कभी कनेक्शन बिल्कुल ख़राब हो जाता है. तो वो क्या है, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं या टेक्निकल ग्लिचेस हैं ये क्या है? ये एक तरह के बैरियर्स हैं. दे एक्ट एज अ बैरियर. ये हमारी प्रोसेस को कंप्लीट होने नहीं देते.
उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बैरियर्स, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज अ बैरियर। हाँ जी Yes. बच्चे, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बैरियर? Yeah, ma'am. हाँ जी, कैन यू रिस्पॉन्ड? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो बैरियर्स जो है वो हमेशा जब भी हम चाहे हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पे आसपास बहुत सारी नॉइजेज़ हों, कोई ट्रैफिक की नॉइजेज़ हों, या अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो फ़ैन ही चल रहा है चाहे, तो फ़ैन भी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। साउंड ऑफ जो एयर कंडीशनर्स होते हैं या कूलर है, इन सब की साउंड्स जो हैं वो भी हमें दे ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर। वो भी हमारी प्रोसेस में हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं और हमारी प्रोसेस को कंप्लीट होने को रोक देते हैं। बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और हमें दोबारा दोबारा चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है या क्लैरिफाई करना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई जो नॉइज़ है या बैरियर, अगर आप इफ़ यू पिक इट एज बैरियर, तो हमेशा जब भी कोई हमारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होती है, सो आई वोंट से ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो बैरियर्स हैं दे एक्ट and they affect the pace of the communication। ठीक है, जो स्पीड से हमारी कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो रही होती है उसकी पेस को ख़राब कर देते हैं, और ये दे डू एग्जिस्ट व्हेन एवर वी कम्युनिकेट। समझ आया प्रोसेस? यस मैम। Yes. So if you look at this this diagram over here, so ये भी सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, अब एडिशन क्या किस चीज़ की करी है हमने, नॉइज़ की। This again represents the same thing, sender encoding message। चैनल नहीं लिखा बट यू इट इज़ अंडरस्टूड कि किसी चैनल के थ्रू ही हम एक मैसेज को सेंड करेंगे और वो डिकोड करके रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करके एक फीडबैक सेंड करेगा, राइट। और हमेशा उस प्रोसेस में जो नॉइज़ है वो एक्ट करती है, वो किसी भी लेवल पे एक्ट कर सकती है, ठीक है। हो सकता है जब सेंडर इज़ ट्राइंग टू इनकोड एंड सेंड द मैसेज वो यहाँ पे एग्जिस्ट करे। हो सकता है जब मैसेज ट्रैवल कर रहा है उसके ट्रांसमिशन के थ्रू टाइम पे बैरियर एक्ट करे यहाँ पे। हो सकता है जब वो डिकोडिंग चल रही है, रिसीवर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड रिसीव द मैसेज, उस टाइम पे कोई ना कोई बैरियर एक्ट करे एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज। हो सकता है जब रिसीवर उस मैसेज को वापस भेज रहा है इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, तो उस टाइम पे जो है वो नॉइस रोल प्ले करे अपना और उस कम्युनिकेशन की प्रोसेस को इफेक्ट करे, राइट। समझ आया ये सारे बच्चे, कम्युनिकेशन की प्रोसेस, एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैम समझ आ गया। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, जितना भी हमने ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है। आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस। हाँ जी, फर्स्टली अदेश्वर अग्रवाल, बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फीडबैक? व्हाट इज अ फीडबैक? You can answer it in any language, किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर कर सकते हो। हाँ जी हेमंत। मैम नहीं, मैं रेज हैंड कर रहा हूँ, मैं आंसर दे दूं। आई वुड लाइक टू आस्क अदेश्वर फर्स्ट, ठीक है। अदेश्वर अगर आता है तो यू कैन आंसर, अदरवाइज आई विल आस्क हेमंत टू आंसर। मैम a feedback is a हाँ जी, feedback is a bank of messages that we received by the receiver। मैम बस। बच्चे it is not received by the receiver, feedback is sent by the receiver, ठीक है। एंड इट इज रिसीव्ड बाय द सेंडर, सेंडर रिसीव करता है फीडबैक बिकॉज इट इज अ रिप्लाई which is sent by the receiver,
All right. Okay. Okay, ma'am. Okay. Next, I would like to ask Heman, आप ही बताओ बच्चे, one-way communication and two-way communication में difference. What is the difference between one-way communication and two-way communication? मैम वन वे कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं होता और टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक होता है। हाँ जी, that is correct. one-way communication में जो feedback है वो नहीं होता, two-way communication में feedback होता है। Harbhajan, बच्चे, can you please tell me what is a channel? मैडम जी मैं चैनल बारे नहीं पता जी, मैं तो पूछिए सोचे। Okay, so आपने पूछा था, I didn't got your message, बच्चे. Okay, I'll explain it again. So channel is, बच्चे, it is a sort of a method जिसके थ्रू हम अपना मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करते हैं या मैसेज को हम सेंड करते हैं। ऑल राइट, सो बेसिकली चैनल क्या है? चैनल एक ऐसी एक मीडियम है जो हमारे मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक या रिसीवर से सेंडर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें फेस टू फेस कम्युनिकेशन की, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में वी कैन से कि जैसे एयर है, दैट एक्ट्स एज अ चैनल, बिकॉज एयर में हमारी जो वॉइस की फ्रीक्वेंसीज हैं या वाइब्रेशंस हैं, दे ट्रैवल। या हम अगर टेलीफोन कॉल की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, जो वायर्स हैं, केबल्स हैं, दे एक्ट एज अ चैनल। इनके हेल्प के थ्रू हम अपना मैसेज ट्रांसफर कर पाते हैं। व्हाट्सएप में चैनल ही है। हाँ जी, व्हाट्सएप एक चैनल ही है। व्हाट्सएप जेड़ा एप्लीकेशन है वो चैनल ही है। आप टाइप कर सकते हैं अपना मैसेज, जो भी क्वेश्चन है आपका, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, एनी अदर डाउट, एनी अदर स्टूडेंट, किसी को भी कोई डाउट है, एनी क्वेरी? और कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है किसी को? काइंडली रिस्पॉन्ड बच्चे। आकाशदीप, हेमन, करण, डू यू हैव एनी डाउट्स? नो मैम। नो मैम। थैंक यू बच्चे। सो हरभजन, योर क्वेश्चन इज कि जो व्हाट्सएप है वो एप्लीकेशन भी एक चैनल की तरह एक्ट कर सकता है? डेफिनेटली यस, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और रिटन जो फॉर्म है उसमें जो चाहे देखो, चाहे वो टेलीफोन में कॉल है, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज है, चाहे ईमेल है, ईमेल में हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है दे हेल्प and they help in the process of communication, and they act as a channel. So all these are the ways through which we can send our messages. So जो भी तरीका, जो भी मीडियम हो जिसके थ्रू हम अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं, that is going to act as a channel. Is that clear now? Okay. So और किसी को कोई भी डाउट है बच्चे? All right, so thank you for joining this class. We'll continue with the next topic in the next class.